सिलेंडर कंपनी वो सिलेंडर देता है ওরা সেন্ট্রাল পাইপলাইনের কাজ হচ্ছে হ্যাঁ সেন্ট্রাল পাইপলাইনের এখন কাজ কমপ্লিটেশনের মধ্যে সেগুলো হচ্ছে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে আর তাছাড়া আমাদের অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বসানোর কথা হচ্ছে পিছন দিকে একটা জায়গা হচ্ছে NHAI ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া চেকআপ করেছে ऑक्सीजन टैंक तो यहाँ पे आपके सारे डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में हां सेंट्रल डिपार्टमेंट नहीं नॉन कोविड में कार्डियो है कार्डियो और न्यूरो नहीं होगा नहीं वो तो सुपर स्पेशलिटी है वो मेडिकल कॉलेज बिना दूसरा जगह में नहीं होगा हाँ वो हमारे यहाँ पे ना कार्डियो और न्यूरो का ज़्यादा डिमांड है बेसिकली दिस इज डिस्ट्रिक्ट सेकेंडरी टायर अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी नहीं होना है सुपर स्पेशलिटी मिलेगा आपको टर्शियरी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज वो पे भी कहाँ है वहाँ पे न्यूरो भी ऐसे ही है कार्डियो भी ऐसे ही है तो न्यूरो है ही वहाँ पर अभी कुचबिहार में और ये दोनों जो है कुचबिहार मेडिकल कॉलेज हुआ अभी हाँ दोनों जगह कार्डियो और न्यूरो का अच्छा चाहिए पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए दो बहुत जरूरी है तो अभी मतलब एक टाइम 400 पेशेंट रहते हैं नहीं कितना टाइम 400 नहीं होता 300 पर अभी खूब कमती होता है अभी कोविड के कारण कमती हो प्लान एडमिशन अभी बांग्ला बोलबो না না বুঝতে পারি আমি আচ্ছা আচ্ছা আপনি হিন্দিতে বলতে পারেন আমি বুঝবো হ্যাঁ বাট আমি বলতে পারবো না হ্যাঁ 400টা তো থাকে না আর এখন কোভিড যেহেতু প্ল্যান্ড অ্যাডমিশন বন্ধ ইমার্জেন্সি ছাড়া ভর্তি হচ্ছে না এবং অনেক পেশেন্টই অ্যাভয়েড করছে না তো না গেলে বোধহয় কোভিড হয়ে যাবে তবে এখন একটু কম আছে এখন সেটা তো হয়নি कोविड के कारण बाकी जनरली एग्जैक्टली अवॉइड करो অ্যাভয়েড করছে এমনিতে লাস্ট ইয়ারের এক্সপেরিয়েন্স ছিল কোভিডের সময় অসুখ মানে জেনারেল নন কোভিড যে এটা আছে সেটা অনেক কমে যায় হ্যাঁ অনেক সব জায়গায় সব জায়গায় भाई हो गया यार ले लिया फोटो बच्चा छोड़ दो बेचारे कोई नहीं कहता मैं भी आता हूँ बात करो প্রথম কথা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে হিউজ বেড ক্রাইসিস আছে আমি লাস্ট 17th ইলেকশনের পর থেকে I go through all the newspaper. I have seen so many paper statements that they are doing this, that, but nothing happened in reality. This is very clear for me, and this is very clear who are associated with it. Secondly, আমাদের যেটা সবথেকে মুশকিল হচ্ছে যে অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে আসছে দু ধরনের সরকারি আর বেসরকারি এবার বেসরকারি আলাদা কিন্তু সরকারিতে আমি দেখলাম যে পরিমাণে বেড বাড়ানো দরকার সেটা কিন্তু বাড়ছে সবটাই দেখছি খবরের কাগজে বলা হচ্ছে কিন্তু বেড আর বাড়ে অর্থাৎ অল দিস আর ইন পেপার নট ইন রিয়ালিটি এইটা একটা আমার মনে হয় 3 নাম্বার হচ্ছে নন কোভিড এর ক্ষেত্রে যেটা অনেকেই সাসপেক্টেড কোভিড বাট দে আর নট টেস্টেড ইয়েট এবং এক একজন পেশেন্টের আমি দেখলাম যে 5 দিন 6 দিন 7 দিন লেগে যাচ্ছে রিপোর্ট আসতে তো 7 দিনে আগে আমি ডেঙ্গুর সময় বলতাম এত পরে রিপোর্ট আসলে হয় রোগী মরে যাবে নয় ভালো হয়ে বাড়ি যাবে তো এরা যাবে কোথায় কোভিড টেস্ট রিপোর্ট ছাড়া অন্য জায়গায় ভর্তি নেবেছে না কোভিড টেস্ট যখন অ্যাওয়েটিং রিপোর্ট তাহলে তাদের রেসপিরেটরি প্রবলেম হচ্ছে যাবে তো এটা খুব দুঃখের যে 2 তারিখে আমি এমএলএ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি শপথ নিয়েছি 7 তারিখে till date not a single body of the administration they never asked me what kind of help they required from my side. They never informed me what kind of arrangement they are doing. This is the fallacy of our administration. They have one administration. They एक दिखे बोलते, which is आप 7 दिन हो गए हमको 2 साल हो गया हाँ एक बार पूछा भी डीएम ने मीटिंग बुलाया इलेक्टेड मेंबर को वो कभी नहीं हुआ आज मैं मस्ता जी को चिट्ठी लिख रहा हूँ उसमें हमारे यहाँ क्या समस्या है उसका समाधान सॉल्यूशन क्या हो सकता है बट है और दे आर आल्सो हेल्पलेस वो मीटिंग में बुलाएगा तो उसका छुट्टी हो जाएगा तो क्या बेचारे इनको क्यों फंसाते हैं
না আমার আপনার মোবাইল নাম্বারটা আমাকে দিন 94 বেশি কাজে লাগবে 9434 बेचारा डोंगल आदमी 488 আপনার নাম্বারটা নিয়ে হ্যাঁ অবশ্যই বলছিল কথা হয় আমি শুধু আমাদের মানে from my side डॉक्टर साहब ये तो लोकल एमएलए है ना ওই জন্যই তো নাম্বারটা রাখলাম নাম্বারটা রাখলাম না हाँ, मेरा भी लिख लो कोई मदद चाहिए तो आप फोन कर देना না আমি ওনাকেই আগে বলবো इम्यूनिटी के আপনার অনেক বড় পোস্ট অনেক বেশি দায়িত্ব আমি ওনাকেই আগে বলবো যদি ইফ হি ফেলস তাহলে আপনাকে বলবো আপনাকে আমি আগে বলবো एक मैंने अभी डीएम को बोल दिया है তাছাড়া আপনি আমার সম্বন্ধে সকল শুনেও নেবেন আমি জানেন তো সবই আচ্ছা এমপি সাহেব বলেন सिलीगुड़ी ये আমি দিয়ে डिस्ट्रिक्ट আচ্ছা জি আপনাকে ওকে ওকে डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ना হ্যাঁ हम एक एम्बुलेंस दे रहा है अभी দেবেন हाँ এসিআর বলে আমি পরে কথা বলছি হ্যাঁ ওকে आपने देखना पड़ेगा आज भी मैं कुछ मास्क और किट लेकर के आया हूँ अभी मैं चाइना यहाँ मिलने का इंपोर्ट करके ये ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर मंगाया अच्छा आज आ जाएगा प्लेन से कल सवेरे आ जाएगा ये एक में यहाँ पे भेज दूँगा तो इमरजेंसी जो माइंड पेशेंट होते हैं कोविड के उनको लगा অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমরা ওয়ার্ডে নামিয়ে দিয়েছিলাম জানি দিয়েছি কালকে রাত্রি कुछ ऑक्सीमीटर भी भेज दूंगा मैं ऐसा हमारा सांसद है ना हमारा भी फर्ज बनता है हम जनता के लिए काम करें बाकी सरकार जो करना है वो करती रहेगी আপনি দিন না বিষয় মানে উই বি গ্রেট টু ডু हमको तो आप जो बोलो हम तो वो कर देंगे ऐसा है जनता के काम आना चाहिए जी वो उसके लिए हम तैयार हैं वो अच्छा है संकल्प तो এই মহেশ্বর हाँ এই শোনো একটু কফি বলি नहीं नहीं আপনি বলছি দিলেন এই Next শোনো, time. এটা কি হলো नेक्स्ट এই टाइम শোনো না नेक्स्ट না टाइम না একটু ফার্স্ট দিলেন তো आप কফি বলে দাও প্লিজ नहीं 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 आज से भैया এই এমপি সাহেব একটু नेक्स्ट टाइम এই তাড়াতাড়ি বললাম যে আমাদের কিছু বেড বানিয়ে দিন কফি আমরা আরো বারবার করে খাবো একটা কথা সবসময় মানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালটা ये बोल रहे हैं कि सभी जगह में इतना साइड बाय साइड नॉन कोविड और कोविड पेट में आ जाए দুটো বার খুলে যেতে পারে वो उत्तर তারা दिनाजपुर সবসময় কিন্তু তাতে আসে না অনেক সময় আপনি যেটা বলছেন 3-4 দিনও লেগে যায় हाँ, उत्तर दिनाजपुर कपड़ा बोला 2 दिन में आ जाता है আমাদেরও দুদিনই আসে এখানে আগে एक्टिविटी रेट कुछ इस अलग वेरी अलग अब क्या है इसका मतलब ये है कि हम 20,000 से लग रहे हैं कि ज़्यादा नहीं है परसेंटेज इज वेरी है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराना पड़ेगा लोग रिकवर होंगे फास्ट होएगा चेंज देगा सब करना पड़ेगा ये एक बड़ा अच्छा हम लोग तो क्या है हम लोग के एमएलए हैं नाम के लिए हेल्पलेस है कलेक्टिव एफर्ट नहीं है हमको बोला जाता है तुमको गाली देना है वो बोला जाता है उसको काम नहीं करना है ये चल रहा है अच्छा गाली देना हमारा स्वभाव नहीं है ये मुश्किल है আপনাদের ছাড়া কি আমরা চলতে পারবো আপনাদের ছাড়া কি আমরা চলতে পারবো জয়েন্ট এফোর্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে না একটু হলেও আমি দেখছি আমি এক্সপেক্ট করছি যে ডিএম সাহেব জয়েন করার পরে যদি ইমপ্রুভ হয় অ্যাজ বিকজ টিউশন জয়েন করেছেন তো বোধহয় ওটা বলে জয়েন করে कर लिया মানে ওই পূর্ণ ডিএম সাহেবই তো রিটার্ন করেছে হ্যাঁ তুমি জয়েন করেছো पहले ये थे फिर वो सेठी आए फिर ये चेंज हो गया हाँ मैं जानता हूँ अच्छा है मत बोलो ना जो भी चलेगा नहीं मैं ब्लैक टी ले लिया ना अभी ज़्यादा रहता है तो फिर वो प्रॉब्लम আচ্ছা ওই দিন দেখি मैं तो मेरी बहुत इच्छा थी सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में आज स्पेशली सबने बोला नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज तो बहुत जाता है और हर नेता जाता है वहाँ पे जैसे मंदिर में माथा टेकने नहीं जाता है दादा आपने बहुत दोस्त लोग हो गए बीमार हाँ हो बहुत अच्छा लगा आपसे ओके
चलो चल चल गाड़ी में बोल चल पीछे ना ঠিক আছে ঠিক আছে अरे मैडम এদিকে চলে আসুন তো আগে বুম ধরেছে একটু দাঁড়ান একটা ছবি করে নেই ছবি ছবি এই বুম ধরে ছবি করে নেই এই বুমটা সরান ছবি করে নেই এটা ছবি করবো তো দাঁড়া না আর কত লাগে ভিতরে লাগে বাইরে লাগে ইউ করলে বড় হবে নাকি তোদের লাগছে তোদের আমাদের তো বাইট লাগবে আমাদের তো ভিজুয়াল লাগবে না এই সাইড এই বুম নামা নিচে ওই বুম নামা নিচে थोड़ा हां डाउन सर अभी क्या हालत है सिलीगुड़ी हॉस्पिटल का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उससे पहले सबसे पहले तो मैं अरे बुम नामा ना आज इंटरनेशनल नर्स डे है। हमारी जितने भी नर्सेस हैं जो हमारी जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारे इलाके में आम जनता सुरक्षित है। आपके मेहनत और तपस्या के कारण, आपकी सेवा के कारण हम सब सुरक्षित हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर है, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता नेता आपके साथ खड़े हैं। और हमने देखा इससे पहले जब एक फ्रंटलाइन वर्कर की डेथ हो गई थी, इमीडिएटली जो है प्रधानमंत्री पीएमओ से जो है फास्ट ट्रैक में काम करके, मुझे अभी भी याद है कि 1 महीने के अंदर अंदर उनको जो है 50 लाख रुपया भी इंश्योरेंस के तौर पे दिलाया गया था। तो मतलब आपकी सेवा को हम हमेशा याद रखते हैं और आपकी त्याग और तपस्या को हम सलाम करते हैं। और इसके साथ ही जो है, जैसा आपने पूछा, अभी हमारे नए विधायक सिलीगुड़ी के और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राजू शाह जी, हम सब लोग आज सवेरे से ही, पहले तो हमारे एक कार्यकर्ता की कोविड के कारण मृत्यु हुई थी, उनके घर गए, उनके परिवार से मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए। और उसके बाद एक हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, टीएमसी के कुछ नेता और कुछ गुंडे दोनों मिले हुए थे, उन्होंने उनकी बहुत पिटाई की, तो उनके सर पे चोट लगाए, उनका एक कान जो है फट गया है। तो उनको देखने, उनसे मिलने, उनके परिवार से मिलने के लिए गए थे। और तीसरी जगह अभी हम सिलीगुड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हम मौजूद थे, और यहाँ पे सुपर से बात हुई। उन्होंने कहा क्योंकि कोविड का समय है तो अस्पताल के अंदर घूमना मुझे लगता है ये अभी उचित भी नहीं होगा। करीब 400 बेड है, उनके हिसाब से सारी सुविधाएं हैं। हमारी तरफ से उनको हमने ये आश्वासन दिया है कि हम हमारी जनता के लिए इस अस्पताल के साथ खड़े हैं। आज भी हमने कुछ पीपीई किट और मास्क दिया है। आने वाले समय में सिलीगुड़ी अस्पताल को मैं एक एम्बुलेंस, एयर कंडीशन एम्बुलेंस भी दे रहा हूं, और साथ ही कुछ इंपोर्टेड जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मैंने बाहर से मंगाए हैं। मुझे लगता है कल तक आ जाएगा, तो कुछ इस अस्पताल के लिए भी मैं भेजूँगा। तो कुल मिला के मैं अस्पताल के प्रशासन या अस्पताल में जो लोग डॉक्टर लगे हुए हैं, मैं उनसे संतुष्ट हूँ, क्योंकि कम संसाधन के बावजूद भी अपना जो बेस्ट कर सकते थे वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे दुख होता है पश्चिम बंगाल की चुनी हुई नई सरकार और यहाँ के प्रशासन से, क्योंकि आज तक देखिए हम नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन हम लाचार हैं। पिछले 2 साल से, और ये पिछले 1.5 साल से, 2 साल से मैं सांसद हूँ, पिछले 1.5 साल से कोविड का संकट चल रहा है करीब करीब, लेकिन आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब यहाँ की प्रशासन ने हमसे पूछा हो या यहाँ की टीएमसी सरकार ने हमसे पूछा हो कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे चुने हुए नेता मिल करके अगर आइडिया को एक्सचेंज करें, तो मुझे लगता है कि इस कोविड के संकट से हमारे लोगों को हम निकाल सकते हैं। लेकिन कोई नहीं पूछता यहाँ पे। ये जो है मतलब इस तरह की राजनीति जो है टीएमसी कई साल से पश्चिम बंगाल में करती रही है। और मैंने ये भी देखा, यहाँ इलेक्शन का कोई महत्व नहीं है, यहाँ सिलेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। सो जो इलेक्टेड एमएलए या रिप्रेजेंटेटिव हैं या एमपीज़ हैं, उनको यह सरकार नहीं पूछती, क्योंकि उनको जनता ने चुना है।
लेकिन यहाँ जो ममता दीदी जिसको सेलेक्ट कर दे उसकी ज़्यादा चलती है। मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा है। ऐसी परिस्थिति बड़ी विडंबना होती है कि भारत जैसे विशाल देश के एक प्रांत में आज हो रहा है। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, ममता दीदी स्वयं हेल्थ मिनिस्टर हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोविड के कारण सब कुछ अच्छा है, देश के बहुत सारे प्रांतों में ये समस्या है, लोग जूझ रहे हैं, लोग कष्ट में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मिल करके काम कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल एकमात्र देश का ऐसा प्रांत है जो केंद्र से भी लड़ती है और जो यहाँ पब्लिक द्वारा चुने हुए जो नेता हैं उनको भी नहीं पूछती। ये इस बात का मुझे हमेशा मलाल है। अगर हम मिल के साथ लड़ के काम करते तो मुझे लगता है आज परिस्थिति कुछ और हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी तरफ से, क्योंकि जनता ने हमको चुना, ये हमारा फर्ज बनता है और मरते दम तक हम जनता के साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और उनको न्याय देने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करते रहेंगे। आज भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री ममता दीदी को एक 2 पेज का लंबा चौड़ा पत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि आजकल वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को बहुत पत्र लिखती हैं। तो मैंने भी जो है, मैं वो आपको भेज दूंगा, मैं भी उनको एक पत्र लिख रहा हूँ कि हमारे पूरे नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट की जो समस्या है कोविड के समय और उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। और मैं उनसे ये भी निवेदन कर रहा हूँ, राजनीति से ऊपर उठ करके जनता के लिए, आम नागरिक के लिए मुझे लगता है काम करना चाहिए। मैं जनता को आपके माध्यम से डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करता हूँ, ये कोविड का समय, ये बचने का समय है। कोविड चल के आपके पास घर में नहीं आएगा, लेकिन आप बाहर जाके कोविड को घर तक ला सकते हो। सो इससे अपने को बचना है और इससे जो है बचने के उपाय हमको स्वयं सोचने होंगे। सरकार प्रशासन जो करनी होगी करेगी, लेकिन जनता को भी बहुत कुछ करना है। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। जैसे कल की अगर आप उदाहरण लो, 62,000 जो है टेस्ट पश्चिम बंगाल में हुए हैं और 20,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 33 से लेकर के 35% पॉजिटिविटी रेट है, यानी हर 3 में से एक व्यक्ति आज पॉजिटिव निकल रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तो टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट कम से कम आज इतने बड़े प्रांत को 1 लाख टेस्ट रोज होना चाहिए, अभी 1 लाख तक हम पहुंचे नहीं, 50-60 के बीच में ही है। सो पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, लोगों को पता नहीं है। और जो ये कोविड के लिए जो RT-PCR टेस्ट होने चाहिए वो भी बहुत थोड़े हैं, लोगों को 5 से लेकर के 7 दिन तक वेट करना पड़ता है। और कई जगह ऐसा देखा है, ये 7 दिन में तो बेचारे पेशेंट की डेथ तक हो जाती है और वो 7 दिन में इतना फैल जाते हैं पूरी दुनिया में, बेचारा उसको भी पता नहीं रहता, वो टेस्ट दे करके आया, मजे से घूम रहा है, उसको कोई जो है तकलीफ भी नहीं है, तो उसके कारण ये रेट बढ़ रहा है। मुझे लगता है हम टेस्ट सेंटर बढ़ाएं और अस्पताल के अंदर में आप देखिए कोविड-1 फर्स्ट वेव था, जितने आइसोलेशन वार्ड थे, जितने जो है क्वारंटीन सेंटर थे, जितने वेंटिलेटर थे, मैं आपको आंकड़े के साथ कह सकता हूँ, जो पहले वेव में जो आंकड़े थे वो आज दूसरे वेव में घटे हैं, बड़े नहीं हैं, घटे हैं। तो मुझे सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको जो है तुरंत बढ़ाना चाहिए, टेस्ट बढ़ानी चाहिए और जो RT-PCR सेंटर बढ़ानी चाहिए, अस्पताल के अंदर में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने चाहिए। ये सब करेंगे तो मुझे लगता है हम, देखिए ये एक संकट ऐसा है जो ना तो TMC लेके आई है, ना भारतीय जनता पार्टी लेके आई, ये प्रकृति की देन है। हम सबको मिल करके इससे पार पाना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बार बार जो है वैक्सीनेशन की बात आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मई महीने के फर्स्ट वीक का डाटा आपको बता रहा हूँ, अभी तक जो है 1.25 करोड़ जो है वैक्सीनेशन पश्चिम बंगाल को भारत सरकार दे चुकी है। और उसके बाद भी अभी पिछले 10 दिनों में और कितनी आए उसके मेरे पास डाटा नहीं। और साथ ही अभी तक जो है कोविड के नाम से 295 करोड़ 295 करोड़ रुपीस पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए दे चुकी है। लेकिन उन पैसे का अभी तक मेरे को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, क्या सुविधाएं बढ़ेगी, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। और अंतिम बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जहाँ एक तरफ पूरा पश्चिम बंगाल और देश कोविड के संकट से लड़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, हमारे समर्थक और जो है 38% पश्चिम बंगाल की जनता
करीब करीब 2.5 करोड़ जो है पश्चिम बंगाल की जनता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, उनको आज कोविड के साथ साथ हिंसा से भी उनको बचना पड़ रहा है, हिंसा का भी सामना करना पड़ रहा है। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिलीगुड़ी जैसे शांत शहर में जहाँ कभी हिंसा नहीं होती थी, आज टीएमसी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पद में बैठे वाले नेता स्वयं घर घर जाकर लोगों को धमका रहे हैं, घर तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पहली बार सिलीगुड़ी में हुआ है और सिलीगुड़ी की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने वोट दिया, आज उनको जो है मतलब ऐसी हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, चाय बागान में कब्जा किया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं और लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से प्रशासन और पुलिस जो शपथ कानून ने उनको दिलाए उसके माध्यम से वो काम करें। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ज़्यादा दिन तक चुप बैठ कर के ड्रामा नहीं देखेगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार हमारे जितने भी पश्चिम बंगाल के 9 करोड़ से ज़्यादा जनता है उनके साथ खड़ी है। उनके हक के लिए जिस हद तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कानून के अंतर्गत हम आपके लिए लड़ेंगे। ये भी आश्वासन मैं आपको देना चाहूँगा।